Okay, so hello everyone. So we have Rabi in front of us. So Rabi, आप IOCL के लिए मॉक इंटरव्यू चाहते हैं, राइट? Yes, sir. तो अब ठीक, तो प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट. Thank you, sir. Thank you for providing me this opportunity to introduce myself. I am Ravi Vasan. I am from Porbandar, Gujarat. I have done my schooling from Kendriya Vidyalaya, Rajkot. I have recently passed out from in chemical engineering from the Maharaja Sayajirao University of Baroda. After the completion of third year of my graduation, I have done internship at Acipet plant at United Phosphorus Limited, Unit 2, Ankleshwar. Other than this, I like in sports, I like to play cricket and volleyball. Although I don't watch it, then I like to watch movies and listen to songs. ओके, तो कौन किस टाइप के सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं आप? Sir, many I like to uh, listen Gujarati folk songs. गुजराती फोक सॉन्ग, ठीक है. तो एक दो गुजराती फोक सॉन्ग्स के एग्जांपल बताएंगे? Yes, sir. One is the like Sona Indhodi Rupa Bedelu. It, it is one of the, and one is Rang Bhini Radha. ओके, तो किस 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 किसने ये सॉन्ग गाया है? थोड़ा नाम बताएंगे सिंगर का? Sir, actually, these are the songs. These are sung by many artists, but these are actually folk songs. So their base is not from where they are written. It is not known. They are sung by many artists, but when of name I can say, I think this Kirtidan Gadvi, Aditya Gadvi. They have sung this song on YouTube. You can find them on YouTube. ओके, तो अभी इंडिया ने रिसेंट में वर्ल्ड कप जीता था, राइट? Yes, sir. तो उसमें मैन ऑफ द मैच कौन था? Sir, Virat Kohli. कितने रन मारे थे उन्होंने, कितने रन स्कोर किए थे? He scored 76 in 59 balls. ओके, तो कितनी डेट को हुआ था वो जो मैच था? क्या डेट? It happened on 29th of June 2024. सो आपने लिखा है कि आप क्रिकेट खेलते हैं, राइट? तो क्रिकेट में आप क्या पसंद करते हैं, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग? Sir, batting and fielding. बैटिंग और फील्डिंग, राइट? Yes. तो आप क्रिकेट देखते भी होंगे? Sir, not that much, but international level matches I watch, not that domestic. ठीक है, तो आपने लिखा है कि योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज फ्लूइड फ्लो ऑपरेशन, हीट ट्रांसफर ऑपरेशन, मास ट्रांसफर ऑपरेशन, राइट? तो मास ट्रांसफर Yes, इंडस्ट्री में sir. कैसे यूज आता है, बताएंगे थोड़ा? Sir, mass transfer is used in like if we take an example of any chemical industry, like if we want a solid product, then we have a crystallization. It is also one part of mass transfer. Then distillation operation is there, which are carried out in many chemical industries like refinery. Other than this, like uh, drying is there, which is last part of any operation which involves solid product. Then absorption operation is there, which is used for environmental control to absorb some of the pollutants. Then other than this, extraction is there, which is used in oil extraction. So like this, many are there. तो मास ट्रांसफर में एक डिस्टिलेशन कॉलम होता है, ठीक है, बड़ा सा. Yes, तो उसमें नंबर ऑफ ट्रेस कैसे डिसाइड करेंगे, कितना नंबर ऑफ ट्रेस होता है? sir. It is decided based on the method called McCabe-Thiele method, in which we are going to find the number of ideal trays. And if we have a overall column efficiency based on this, we are going to find number of true number of, that is actual number of trays which are required in a given operation. ओके, सो मैककेप थिले मेथड में सपोज कीजिए, क्या उसका जंक्शंस होता है? कितने जंक्शंस होते हैं मैककेप थिले मेथड के, और क्या जंक्शंस होते हैं? Yes, sir. The main assumption in McCabe-Thiele method is that there is a constant molar overflow. So in each section, that is in rectifying section and in the stripping section, the
the rate of liquid flow rate and the rate of vapor flow rate, they are assumed to be constant on each plate. Other than this, one of the other assumption is that latent heat for both the compounds is assumed to be constant, and the ओके other ओके, assumption is तो ये that बताइए, ओके लीव इट, ये बताइए एलपीजी और सीएनजी सुना होगा, दोनों गैसेस, yes sir. क्या डिफरेंस होता है दोनों में? Sir, LPG is domestic fuel which comprises of butane and propane. It is liquefied and stored in gas cylinders. कितना And कितना कंटेंट CNG होता है is, प्रोपेन एंड ब्यूटेन का? sir, normally the content of butane is 60% and propane is 40%. This is general composition. Otherwise it could vary for several applications. And in CNG, it is compressed natural gas. It is in compressed, and it is not liquefied. It is transferred through pipelines only. तो आपने आईओसीएल में बिटुमेन के बारे में सुना होगा, बिटुमेन तो आपने देखा होगा जो सड़कों पे यूज करते हैं। तो आईओसीएल की Yes, sir. कौन सी ब्रांड है जो कि अपन बिटुमेन सेल करते हैं, किस ब्रांड के थ्रू बिटुमेन सेल करते हैं? Mm. Sorry, sir, that I don't know. ओ, तो पेट्रोल की आपने जो प्रीमियम पेट्रोल होता है, ठीक है, उसको एक्स्ट्रा Yes, sir. प्रीमियम बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली Yes, sir. डीजल में भी जो प्रीमियम डीजल होता है जिसका सीटेन नंबर ज्यादा होता है, उसको क्या उसको किस ब्रांड के थ्रू सेल करते हैं? It is extra mild diesel. उसका सीटेन नंबर क्या होता है? That I don't know, sir. नॉर्मली नॉर्मली डीजल का सीटेन नंबर क्या होता है? Sir, it will be uh, around 95. ऑक्टेन नंबर, चलिए पेट्रोल का नॉर्मली ऑक्टेन नंबर क्या होता है? नॉर्मल जो पेट्रोल होता है जो आप गाड़ियों में डलवाते हैं, उसका ऑक्टेन नंबर क्या Yes, होता है एज पर BS6 स्टैंडर्ड? no, sir, that thing I don't know. तो चलिए, जो BR होता है जो कि रेसिड्यू होता है कॉलम से, ठीक है, Yes, डिस्टिलेशन कॉलम है, तो एक वैक्यूम कॉलम भी होता है, ठीक है। तो yes, वैक्यूम sir. कॉलम को अपन वैक्यूम कॉलम क्यों बोलते हैं? Sir, because it is made to operate on the on on the like speed that is hard to break, and it is operated at vacuum. It is operated at vacuum because the speed in it is hard to break. So to that speed have very much relative volatility. So we need to increase its relative volatility by using the vacuum. तो वैक्यूम के थ्रू आप रिलेटिव वोलेटिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं, क्या कनेक्शन है दोनों के बीच में? Sir, as we decrease the pressure, the relative volatility between the components is going to increase. तो रिलेटिव वोलेटिलिटी इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से अपन लाइटर कंपोनेंट को रिकवर कर लेंगे, राइट? है ना? Sir, I'm not able to हाँ, listen रिलेटिव right वोलेटिलिटी now. इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से लाइटर कंपोनेंट को हम रिकवर कर लेंगे, ठीक है। Yes, आपने sir. सुना होगा कि रिफाइनरी गैसेस भी कुछ होती हैं, तो उसमें क्या क्या होता है Yes, रिफाइनरी गैसेस में? sir. क्या? It comprises like methane, ethane, and propane, and several times butane also. But it is very lesser in compared to other. First two are in very much, but other two are lesser than that. तो ये जो रिफाइनरी गैसेस होती हैं उसका पॉइंट कहाँ होता है, मतलब उनको हम डायरेक्ट मार्केट में सेल करते हैं या फिर उनको बर्न आउट कर देते हैं? No, sir. We first need to treat them using some of the processes. Impurities we need to remove. After that, we can use them like propane and butane. They are used in making LPG, and methane is also there, which is used in several processes like gasification and all this. ओके, सो आई विल गिव यू द फीडबैक, ठीक है रवि। तो योर इंट्रोडक्शन पार्ट मुझे ऐसा लगा कि जो आप ये बोलते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल
गिव आई एम वेरी ब्लेस्ड टू गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ये वाला पार्ट नहीं बोलना है, ठीक है। आपको डायरेक्ट अपने नेम से स्टार्ट करना है कि गुड गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज रवि एंड आई एम फ्रॉम देयर देयर, ठीक है। देन आपकी एजुकेशन, देन आपके अचीवमेंट्स और जो भी फर्दर मूव ऑन होता है, ठीक है। उसके बाद बात आती है ओके। कि आपका जो टेक्निकल पार्ट है, टेक्निकल मैंने चेक किया है, टेक्निकल पार्ट इज गुड, ठीक है। लेकिन जो नॉन टेक पार्ट है, ठीक है, नॉन टेक पार्ट में आप फंस जाओगे, टू बी ऑनेस्ट। मीन्स जो कि यस सर। बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि आईयूसीएल की साइट पर जाकर वहाँ पे जो अबाउट अस है वहां से पढ़ना है आप लोगों को। तो आई थिंक यू डिड नॉट फॉलो दैट पाथ, ठीक है। तो अभी आप क्या करना कि आपका जितना भी इंटरव्यू डेज बचे हुए हैं उसमें आप आईयूसीएल की साइट पे जाकर अबाउट अस में जितने भी सेक्शंस हैं उसमें आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, आईयूसीएल की ब्रांड्स मिल जाएगी, लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट हुआ है, इस क्वार्टर में कितना प्रॉफिट हुआ है, सब कुछ मिल जाएगा। तो उसको जाके डीप स्टडी कीजिए, ठीक है। ओके उससे आपको पूरा नॉन टेक सर। पार्ट का आइडिया हो जाएगा। रेस्ट थिंग इज योर स्ट्रेंथ, वीकनेस और वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 ईयर 10 ईयर, जो कि बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। तो आई एम नॉट गोइंग टू वेरी मच इन दिस। लेकिन जो अबाउट अस है आईओसीएल का वो आपको पढ़ लेना है, उसमें मेन है आईओसीएल के प्रोजेक्ट्स और आईओसीएल की सारी रिफाइनरीज की कितनी कैपेसिटी है, ये सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। 10 to 15 क्वेश्चन अपने आप ही प्रिपेयर करने हैं उसमें से। नाउ लीव द टेक्निकल पार्ट, यस गोइंग टू दिस नॉन टेक पार्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब यस भी सर। आप इंटरव्यू लेते हैं, अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आई विल ट्राई कि आपका इसके यस बेसिस पर इंटरव्यू ले सकूं, ठीक है। तब तक आप प्रिपेयर करोगे, ठीक है रवि। यस सर। ठीक। और यस सर, एक डाउट था कि वो अगर ये पूछे कि प्राइवेट कंपनी में अगर हमको पहले तो बताना है कि नहीं कि हमारा प्राइवेट कंपनी में ऑलरेडी हो चुका है। अगर आपने बायोडाटा फॉर्म में मेंशन नहीं किया तो आपको बताने का जरूरत नहीं है। यस सर, उसका ज्वाइनिंग अभी ही है, अभी मैं मतलब जस्ट 2 तारीख को ज्वाइनिंग है, 2 तारीख को इंटरव्यू की है, तो 3 को ज्वाइन करूंगा। आपको बताने का उसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप बताएंगे तो फिर वो आपको ड्रैग करते हुए चले जाएंगे प्राइवेट कंपनी के ऊपर कि आप वो जॉब क्यों यस छोड़ सर। रहे हैं, दैट जॉब इज गुड इनफ और वो आपके घर के पास भी है, लोकेशन भी अच्छी है, आईओसीएल में लोकेशन नहीं मिलेगी। मीन्स इतने ज्यादा पार्ट बोल देंगे वो कि आप आइडिया नहीं लग पाएगा, इसके चक्कर में आपका इंटरव्यू बेकार हो जाएगा। तो बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि सर आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गेट द पीएसयू, इफ नॉट दिस यस दिस ईयर देन आई विल ट्राई इन नेक्स्ट ईयर, यस ठीक है। सर। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड दे विल नॉट ड्रैग यू इन दैट मैनर, ठीक है। यस सर। ठीक है, चलो। थैंक यू सर।